for national movements in India. So first of all, we will see here introduction. During their stay in India, Britishers became familiar with the political condition of India. So friend, as we know that Britishers were stay in our country, and when they were staying in our country, they were completely become familiar with our political condition. The British East India Company took advantage of the political disputes or internal weaknesses of India, and from 1757 AD, after creeping into Bengal, to the uprising of 1857 AD, it established its supremacy over India in its 100 years of rule. So friend, we know that they were completely become familiar with our political condition, and they had started took advantage of our political disputes and internal weaknesses of our country. And from 1757 to 1857, they had established their supremacy completely in our country. In order to maintain this supremacy, the English gradually developed a strong administrative structure in the country, and after established their supremacy, they had required to maintain the supremacy in our country, and that's why they had made a strong administrative structure in our country to rule in our country. Through this administrative structure, common laws, common administration, and a legal system according to the British system came into existence. यानी कि ये सब जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर उन्होंने खड़ा किया था, जो लॉज उन्होंने बनवाए थे, जो कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने एस्टेब्लिश किया था और जो सिस्टम भी एस्टेब्लिश की थी, तो वो सभी जो है तो वो एक ब्रिटिश सिस्टम को एक एग्जिस्टेंस में लाने के लिए ये सब किया था. Yet, the English residing in India established such laws and administration that England would get more benefits. यानी कि जो भी इंग्लिश पीपल इंडिया में रहते थे तो उन्होंने इस तरह से लॉज फ्रेम किए थे, एडमिनिस्ट्रेशन भी इस तरह से उन्होंने एस्टेब्लिश की थी कि जिनके कारण जो बेनिफिट होता था तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट इंग्लैंड को होता था. At the coast of India, they made England prosperous and exploited India the most. यानी कि इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा वो एक्सप्लोइट करते थे और इंग्लैंड को वो ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रॉस्पेरियस बनाते थे. So friend, all these things we have already learned in our standard 8. Next topic, the Great National Uprising of 1857. Some of the factors that caused the uprising of 1857 were political dissatisfaction, economic exploitation, social and religious factors, military factors, and immediate regions like introduction of the Enfield rifle in the army. So friend, in 1857 there was a revolt uprising, and the reason of that revolt was political dissatisfaction, economic exploitation, social and religious factors, military factor, and immediate regions like introduction of the Enfield rifle. So these are the regions which are responsible for the uprising of the revolt of 1857. Mangal Pandey was the first martyr of the uprising. Several revolutionaries like Nana Sahib, Tatya Tope, Raja Kumar Singh, Rani Lakshmibai, Bahadur Shah Zafar, etc. took part in it. So friend, Mangal Pandey was the first martyr of 1857 revolt, and different revolutionaries were also took responsibilities of this revolt. So these are Nana Sahib, Tatya Tope, Kumar Singh, Lakshmibai, Bahadur Shah Zafar, etc. The uprising of 1857 produced many effects, among which are the end of the company rule in India and the rule of the British Crown, means rule by Queen Victoria, change in administrative, military, social, religious policies. यानी कि जो 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था तो उसका परिणाम ये मिला कि जो कंपनी रूल था तो कंपनी रूल का एंड हुआ, यानी कि वो कंपनी रूल अब स्टॉप हो गया था
और उसकी जगह पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री, सोशल और रिलीजियस पॉलिसीज जो कर रही थी या फिर जो मेंटेनेंस हो रहा था, तो अब वो ब्रिटिश क्राउन यानी कि जो इंग्लैंड की जो क्वीन थी विक्टोरिया, तो वो अब एडमिनिस्ट्रेटिव का जो काम है तो वो अपने हाथ में लिया था। यानी कि इस तरह से जो कंपनी रूल है वो चॉप हो गया था और उसकी जगह पे ये क्वीन विक्टोरिया जो है तो वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन का काम शुरू कर दिया था। The regions responsible for the failure of 1857 uprising are the beginning of the uprising before the planned time, lack of central leadership, insufficient and unsophisticated weapons, importance of self-centered interests then nationalism amongst the revolutionaries, lack of suitable and organized leadership, etc. So friend, we know that the revolt of 1857 were became failed and here given some reasons for their failure. So the first reason is the uprising before the planned time. यानी कि ये 1857 का जो रिवोल्ट प्लान किया गया था यानी कि जो डेट फिक्स की गई थी तो उससे पहले ये रिवोल्ट शुरू हो गया था तो इसके कारण ये रिवोल्ट फेल हुआ था। Then lack of central leadership, insufficient and unsophisticated weapons, importance of self-centered interests, then nationalism amongst revolutionary. यानी कि जो रिवोल्यूशनरी थे तो उसमें अपना खुद का इंटरेस्ट जो था तो वो इंटरेस्ट को वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रहे थे जबकि उनको नेशनलिज्म को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना था। फिर एक जो लीडरशिप किसी एक को लेनी चाहिए थी तो वो लीडरशिप किसी एक जगह से नहीं हुई थी। तो ये सब जो उनके रीजन है कि जिसके कारण ये रिवोल्ट जो है तो वो फेल हुआ था। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन डिटेल इन द प्रीवियस क्लास कि आपने ये सभी जो है तो अपने प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ लिया है। बॉयकॉट एंड इंडिजिनियस मूवमेंट्स। Boycott and indigenous movement, along with Bang Bang movement in 1905, was one of the important events of the Indian national movements. यानी कि जो बॉयकॉट और इंडिजिनियस मूवमेंट थी कि जो बंग बंग मूवमेंट के साथ ही शुरू हुई थी तो वो इंडिया की जो नेशनल मूवमेंट्स थी तो उसमें एक इम्पोर्टेंट इवेंट मानी जाती थी यानी कि ये जो मूवमेंट्स थी तो एक इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स थी। Because of the divide and rule policy as a result of the Britishers' Machiavellian policies, boycott and indigenous movement got an impetus. यानी कि जो ब्रिटिश पीपल की जो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसीज थी और उसके साथ उनकी जो माचिवेलियन पॉलिसीज थी तो उसके लिए जो बॉयकॉट और इंडिजिनियस मूवमेंट जो है तो वो उनको एक इम्पेटस देती थी यानी कि उनको एक एनकरेजमेंट देती थी। Bengal was a big province at the time of British rule, which included the present-day Bengal, बिहार एंड उड़ीसा। यानी कि जो ब्रिटिश रूल में जो बंगाल है तो एक लार्ज प्रोविंस था और उस वक्त उसमें जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो हाल में है तो वो सब ये बंगाल में इंक्लूड होते थे। Compared to other states, Bengal was the central point of national awakening. यानी कि दूसरी स्टेट्स के कंपेयर में बंगाल जो था तो एक सेंट्रल पॉइंट माना जाता था वो नेशनल अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए। द impetus एंड थॉट फॉर द नेशनल मूवमेंट केम फ्रॉम बंगाल। In the 1857 revolt, Hindus and Muslims had collectively fought the English. यानी कि जो नेशनल मूवमेंट की जो थॉट जो मिलती थी या फिर उनके साथ जो एनकरेजमेंट मिलता था तो वो बंगाल से ज़्यादा मिलता था और 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था उसमें हिंदूज और मुस्लिम ने जो कलेक्टिवली यानी कि साथ में रहकर इंग्लिश पीपल की जो फाइट की थी तो वो भी बंगाल से ही ज़्यादा हुई थी। That's why, through the English strategy of divide and rule, they encouraged communalism and caused division among people. यानी कि इसीलिए जो इंग्लिश स्ट्रेटेजी ये थी कि कुछ भी करके ये डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है तो उसको वो एनकरेज करे और उसके कारण जो कम्युनलिज्म है तो वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करे ताकि उसमें जो डिवीजन है वो डिवीजन पीपल में हो जाए। Viceroy Curzon in 1899-1905 divided the vast Bengal province into East Bengal and West Bengal in the name of bringing about administrative efficiency। यानी कि उस वक्त के जो लॉर्ड
वाइसरॉय थे कर्जन, तो उन्होंने बंगाल प्रोविंसेस के दो पार्ट कर दिए थे। और वो दो पार्ट कौन से थे? तो वो ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल थे। और वो इसलिए किए थे कि ताकि वो इंडिया की जो इंडिया में जो हिंदू मुस्लिम की जो यूनिटी थी तो वो उनको तोड़ना चाहते थे। मगर उन्होंने नाम क्या दिया उनका? तो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के कारण वो बंगाल के दो पार्ट कर रहे थे, ऐसा उन्होंने डिक्लेयर किया था। There was a strong opposition to the division of Bengal. When Bengal was divided on 16th October 1905, the whole Bengal observed the day as a national mourning day. यानी कि बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था तो वो पूरी कंट्री में उसका अपोज हुआ था और खास करके बंगाल में ज़्यादा हुआ था। और वो जो पार्टीशन हुआ था, डिवीजन हुआ था, तो वो डेट थी 16 अक्टूबर 1905 थी। और उस वक्त पूरे बंगाल में एक नेशनल मॉर्निंग डे यानी कि राष्ट्रीय शोक दिन तारीख डे के नाम से वो ऑब्जर्व किया गया था। The same day, an announcement about boycotting all foreign goods and encouragement to use indigenous goods was made. और उसी दिन ये भी अनाउंस हो गया था कि जो भी फॉरेन गुड्स है तो वो उसको बॉयकॉट करेंगे और इंडिजिनियस जो गुड्स है तो उसको एनकरेज करेंगे। Not mainly Bengalis, but the other Indians also began to believe that this division had been done to curtail the vociferous feeling of nationalism that was catching up in India. यानी कि सिर्फ बंगाली पीपल ही ऐसा नहीं मानते थे, मगर पूरे इंडिया कंट्री मानती थी कि ये जो डिवीजन हुआ था तो वो डिवीजन जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग अवेक हुई थी तो उसको दाबने के लिए या फिर उसको तोड़ने के लिए ये बंगाल का पार्टीशन हुआ था, ताकि वो इंडिया के ऊपर इजीली से या सिंपल वे से वो कैप्चर कर सके और उसका जो एम्पायर है वो ज़्यादा से ज़्यादा वो स्प्रेड कर सके। That day, Hindus and Muslims tied Rakis to each other in the entire Bengal to express their unity. और उस दिन हिंदू और मुस्लिम दोनों पीपल ने एक दूसरे से राखी बांधी थी और ये पूरे बंगाल में हुई थी और ये ऐसा एक्सप्रेस करना चाहते थे कि दोनों पीपल में अब जो यूनिटी है तो वो यूनिटी बन चुकी है। दिस मूवमेंट हैड थ्री मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि ये जो मूवमेंट्स थी तो उनके तीन मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स थे। तो उसमें फर्स्ट दिया गया है अडॉप्ट इंडिजिनियस प्रोडक्ट्स मीन्स स्वदेशी, यानी कि खुद की कंट्री में बनी हुई जो प्रोडक्ट है तो उसको ही वो अडॉप्ट करे, उसको ही वो परचेज करे। सेकंड नंबर था कैरेक्टर, तो वो बॉयकॉट फॉरेन गुड्स, यानी कि सेकंड फीचर ये था कि जो भी फॉरेन गुड्स है तो उसको बॉयकॉट करे, उसको छोड़ दे। और तीसरा जो था तो वो अडॉप्ट नेशनल एजुकेशन, यानी कि फॉरेन एजुकेशन से बेटर है कि खुद का जो नेशनल एजुकेशन है तो उसको अडॉप्ट करे, ताकि जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग है तो वो हर एक इंडियन में वो इनकलकेट हो सके। India benefited a lot due to this Swadeshi movement, while the English industry was badly affected due to the boycott of foreign goods. So friends, due to this Swadeshi movement, India had got a lot of benefit, whereas English industry was badly affected due to this boycott movement. The clothes coming from Manchester stopped. Sugar, shoes, cigarettes, tobacco, etc. imported from England also reduced and the sale of clothes made in India increased. यानी कि जो मैनचेस्टर से जो क्लोथ आते थे तो वो स्टॉप हो गए थे। उसके बाद जो शुगर, शूज, सिगारेट्स और टोबैको जो इंग्लैंड से इंपोर्ट होता था तो वो इंपोर्ट अब रिड्यूस हो गया था, यानी कि बंद हो गया था। और उसकी जगह पे जो इंडिया में जो क्लोथ मैन्युफैक्चर होते थे तो उनकी जो डिमांड थी तो ये डिमांड बढ़ी थी। फैक्ट्रीज फॉर मेकिंग इंडिजिनियस goods were started. The effect of the movement was felt in other provinces of India like Punjab, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Mumbai, Madras, etc. Besides Bengal, the echo of the Swadeshi movement was felt in Gujarat too. यानी कि जो भी फैक्ट्रीज थी तो अब वो इंडिजिनियस गुड्स को स्टार्ट करने लगी थी और इसकी इफेक्ट जो हुई थी, यानी कि ये मूवमेंट की जो इफेक्ट हुई थी तो इंडिया के दूसरे प्रोविंसेस में भी हुई थी, जैसे कि पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, मुंबई, मद्रास, तो वहाँ पे भी ये जो इसकी इफेक्ट है तो इस इफेक्ट हुई थी। और
एक स्वदेशी मूवमेंट का जो एक इको है तो वो हमारे गुजरात में भी ये हुआ था, यानी कि सब लोग जो थे वो फॉरेन गुड्स को अब लेफ्ट करने लगे थे, यानी कि उसको छोड़ने लगे थे, और जो हमारी कंट्री में जो चीज़ बनती थी तो उसको ही अब वो लोग एक्सेप्ट करते थे। The echo of the movement was also felt strongly in the British Parliament, and within 6 years, means in 1911, the division of Bengal was scrapped after a rethinking by the Parliament. यानी कि ये मूवमेंट का जो इको है तो ये इको ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी पड़ा था, यानी कि उसको भी सुनाई दिया था, और उसका परिणाम ये आया कि सिर्फ 6 इयर्स में, यानी कि जो बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था उसके बाद 6 इयर्स के बाद ही 1911 में जो डिवीजन बंगाल का हुआ था तो वो अब छोड़ दिया गया था, यानी कि उसको फिर से तोड़ दिया था। और इस तरह से जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी तो वहाँ पे ये जरूरत हुई कि अब जो बंगाल का पार्टीशन था तो वो दूर करे। दिस वॉज अ मेमोरेबल विक्ट्री बाय द इंडियंस, अ विक्ट्री ऑफ द लैंडलेस यूनाइटेड एफर्ट्स, यानी कि एक मेमोरेबल विक्ट्री इंडियन पीपल की थी कि जो फर्स्ट टाइम थी। This was a noteworthy victory of the new awakening against the English rule, यानी कि एक नोटवर्दी एक विक्ट्री मानी जाती है क्योंकि इंग्लिश रूल के अगेंस्ट में एक नई सोच के साथ ये विक्ट्री शुरू हुई थी, यानी कि उनको एफोर्ड करने पड़े थे, फिर भी ये जो विक्ट्री थी तो ये एक विक्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती थी क्योंकि एक इंग्लिश रूल के खिलाफ में एक नए दौर में एक नई सोच के साथ ये विक्ट्री हुई थी। Muslim League, 1906. By adopting the divide and rule policy, the English want to create a conflict between Hindus and Muslims. So, friend, British government had adopted the policy of a divide and rule, and it was adopted to break the unity between Hindus and Muslims, and they want to create a conflict between these communities. The then Viceroy Lord Minto and the Indian Wazir means Diwan मौर्य टुगेदर प्लान टू क्रश द इंडियन नेशनलिज्म, यानी कि उस वक्त के जो वाइसरॉय थे लॉर्ड मिंटो और इंडिया के जो वजीर थे मौर्य, तो वो दोनों ने ये प्लान किया था कि किसी भी तरह से ये इंडियन नेशनलिज्म जो है तो वो नेशनलिज्म को वो तोड़े। When the national fight became stronger, the English began to favor the upper class Muslims. The English became successful in convincing a group of Muslims that they must form a Muslim organization to demand for separate voting rights and separate voting centers. यानी कि ये जब नेशनल फाइट शुरू थी तो उसी वक्त इंग्लिश ये जो मौल्य थे और जो मिंटो थे तो उन्होंने जो मुस्लिम के जो अपर क्लास थे तो उनको सपोर्ट किया था, यानी कि उनका फेवर किया था, और उन्होंने ये भी कन्विंस कर दिया था मुस्लिम ग्रुप्स को कि वो अपना एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन अलग से बनवाए, और साथ में जो वोटिंग राइट्स थे और वोटिंग सेंटर जो है तो वो भी उनके लिए अलग से हो। यानी कि ये जो डिमांड है डिमांड लॉर्ड मिंटो और वजीर मौल्य की थी, मगर ये सब उनको कन्विंस करके, यानी कि मुस्लिम ग्रुप्स को उन्होंने कन्विंस कर दिया था कि ऐसा उनको करना है। एज ए रिजल्ट मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म 1906, यानी कि इसके कारण जो मुस्लिम लीग है तो वो फॉर्म हुआ था। Religious head of the Muslims Aga Khan, Nawab of Dhaka Salimullah Khan, Viceroy Minto, and his personal minister Dunlop Smith had played an important role in the establishment of this organization. यानी कि उस वक्त के जो रिलीजियस हेड थे आगा खान, फिर जो नवाब ऑफ ढाका जो सलीमुल्ला खान, वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो, और उनके जो पर्सनल मिनिस्टर थे डनलॉप स्मिथ, तो उनका जो रोल है तो एक इम्पोर्टेंट रोल माना गया था ये मुस्लिम लीग को एस्टेब्लिश करने में। In order to stop the Muslims from attending the annual conference of the Congress, the annual conference of the Muslim League was arranged on the same day as that of the Congress. यानी कि जब भी कांग्रेस का एनुअल डे या फिर एनुअल कॉन्फ्रेंस होती थी तो उसी दिन मुस्लिम लीग भी अपना कॉन्फ्रेंस अरेंज करती थी, ताकि जो मुस्लिम पीपल है या फिर मुस्लिम लीडर्स है तो वो कांग्रेस के एनुअल कॉन्फ्रेंस में वो न जा सके। Thus, the demand for separate representations is not the brainchild of the Muslims but that of the English policy. यानी कि खुद का अलग से रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए
तो वैसी जो सोच है तो वो सोच मुस्लिम की नहीं थी, मगर ये सोच जो थी तो एक इंग्लिश पॉलिसी की थी, यानी कि खुद का अलग से लीडर होना चाहिए। तो ये ऐसी सोच, ऐसी थिंकिंग मुस्लिम पीपल की नहीं थी, ऐसी सोच, ऐसी थिंकिंग इंग्लिश पीपल की थी, ताकि इन जो हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में जो यूनिटी है तो वो यूनिटी को वो तोड़ सके। Minto started the policy of taking Muslims as associates. That's why many writers consider Minto as the father of Muslim communalism. यानी कि मिंटो ने अपनी जो पॉलिसी है तो वो पॉलिसी मुस्लिम पीपल को साथ में रखकर बनानी शुरू कर दी थी, और इसीलिए कई ऐसे राइटर्स जो है तो ऐसा मानते हैं कि मुस्लिम कम्युनलिज्म का जो फादर है तो वो लॉर्ड मिंटो है। A historian also goes to the extent of saying that the real creator of Pakistan was not Muhammad Ali Jinnah or Rahimullah, but Minto। यानी कि कुछ हिस्टोरियंस तो ऐसा भी कहते हैं कि पाकिस्तान के जो क्रिएटर है वो मोहम्मद अली जिन्ना या रहीमतुल्लाह नहीं है, मगर उनके जो क्रिएटर है वो मिंटो है, क्योंकि मिंटो ने ही ऐसी सोच रखी थी तो उनका जो मुस्लिम का जो रिलीजन है वो अलग हो, और उसका परिणाम ये मिला कि जो मोहम्मद अली जिन्ना और रहीमतुल्लाह ने पाकिस्तान की डिमांड रख दी। Since then, the conflict between Hindus and Muslims increased and resulted in the division of India। और उसके बाद जो हिंदू और मुस्लिम पीपल में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, और इसका परिणाम ये मिला कि इंडिया का डिवीजन हो गया, यानी कि दो कंट्री अलग अलग हो गई। बर्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ एक्सट्रीम रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। The revolutionary activity in India was started by Vasudev Balwant Pharke. Revolutionaries like Damodar Chepkar and Balkrishna Chepkar brothers, Veer Savarkar, Barindranath Ghosh, Khudiram Bose, Praful Chaki, Ram Prasad Bismil, Ashfaqullah Khan, Chandrasekhar Azad, Bhagat Singh, Shivram Rajguru, Sukhdev, Batukweshwar Dutt, Roshan Singh, etc. carried on the torch of nationalism. So friends, here the revolutionary activity in India was started by वासुदेव फाल्के। यानी कि जो वासुदेव बलवंत फाल्के थे तो उन्होंने इंडिया में रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज शुरू की थी, और उसके बाद भी कई ऐसे रिवोल्यूशनरीज थे कि जिन्होंने ये नेशनलिज्म का जो टॉर्च है वो हमारी कंट्री में किया था। यानी कि एक टॉर्च का काम जो है नेशनलिज्म के लिए, तो वो इस जो लीडर्स थे, इस जो फ्रीडम फाइटर्स थे तो उन्होंने किया था। जैसे कि यहाँ पे दिया है फ्रीडम फाइटर्स के नेम, जैसे कि दामोदर चपकर, बाल कृष्णा चिपकर ब्रदर्स, देन वीर सावरकर, बारिंद्रनाथ घोष, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, रोशन सिंह एटसेट्रा। Youth tried in making and using weapons were a constant threat for the English government। यानी कि जो यूथ थे, उस वक्त के जो यंगस्टर्स थे, तो उन्होंने अब जो वेपन्स थे तो वो वेपन्स के साथ उन्होंने ये रिवॉल्यूशन जो है तो वो शुरू किया था, और एक तरह से वो इंग्लिश गवर्नमेंट को एक चैलेंज दे रहे थे कि वो अब यहाँ से चले जाए और उनकी हमारी जो कंट्री है तो वो उनको वापस कर दे। और ये यहाँ पे आपको पिक्चर जो दिखाई देता है तो वो वासुदेव बलवंत फाड़के है कि जिन्होंने फर्स्ट रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी हमारी कंट्री में की थी। Fierce revolutionary movements began in India and spread in the other countries as well. The circumstances in its background were the cancellations of the partition of Bengal, the partition of two groups as like Jahal means radicals and Mawal means moderates at the Congress conference in Surat in 1907, and the terrific opposition to practice of Congress of making only resolutions and requests। यानी कि जो फियर्स रिवोल्यूशनरी मूवमेंट है तो अब हमारी इंडिया में शुरू हो गई थी, और साथ में जो दूसरी कंट्रीज थी तो वहाँ पे भी ये स्प्रेड हो चुका था। और वो जो सर्कमस्टेंसेस इस वक्त ये ऐसा खड़े हुए थे कि जो बंगाल का जो पार्टीशन था तो वो अभी दूर करना पड़ा था, क्योंकि ये रिवोल्यूशनरी जो थे तो उन्होंने ऐसी मूवमेंट शुरू की थी कि जिनके कारण जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है तो वो घबरा गई थी, और ये बंगाल का जो पार्टीशन थे तो उनको कैंसिल करना पड़ा था। मगर उस वक्त जो कांग्रेस है तो कांग्रेस को जो सूरत में कांग्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 1907 में, उस वक्त कांग्रेस के दो पार्ट हो गए थे, जो जहल
यानी कि जो रेडिकल्स मूवमेंट्स यानी कि एक्सट्रीम रिवोल्यूशनरी में मानते थे, और जो मवाई तो वो मॉडरेट लीडरशिप में मानते थे। और उसका जो ऑपोजिशन है तो ऑपोजिशन सेम ही था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को कुछ भी करके यहाँ से निकाले और कुछ भी करके ये जो रिजोल्यूशन जो है तो वो रिजोल्यूशन को वो करे। लाल बाल पाल trio adopted the radical attitude which brought new life in the young Indian activities। यानी कि जो लाल बाल पाल की जो ट्रियो थी यानी कि ये जो त्रिमूर्ति थी, तो उनको एक रेडिकल एटीट्यूड इंडियन यूथ में लाए थे, और उनके कारण जो इंडियन यंगस्टर थे तो वो अब एक एक्टिव एक्टिविस्ट बन गए थे, जिसके कारण वो एक्सट्रीमली रिवोल्यूशन में जुड़ गए थे। The lethargic policies of the Indian National Congress got a solid new turn। यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो एक पॉलिसीज थी, जो नई नई पॉलिसी लेकर वो आते थे, यानी कि वो उनका जो प्लान है वो प्लान अलग अलग तरह से लेकर आते थे, उनके कारण उनको एक सॉलिड टर्न अप मिल गया था, जिसके कारण जो फ्रीडम है तो वो फ्रीडम अब जल्दी मिलने वाली थी। Now friends, you can see here the photos of our freedom fighters. So first photo is here given Khudiram Bose, next Ram Prasad Bismil, next Ashfaqullah Khan, next Chandrasekhar Azad, next Sardar Bhagat Singh, next Shivram Rajguru, next Sukhdev Thapar, and last Roshan Singh. So friends, these were our freedom fighters who had sacrificed their lives for our independence from the British Empire. Lokmanya Bal Gangadhar Tilak declared it firmly, "Freedom is my birthright and I will achieve it anyhow." This became the maxim for the revolutionary freedom fighters। यानी कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने ये डिक्लेयर किया था कि जो फ्रीडम है वो मेरा बर्थ राइट है, और वो कुछ भी करके मैं उसको हासिल करके ही रहूंगा। तो ये जो स्टेटमेंट है उनका, तो वो फ्रीडम फाइटर्स जो रिवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर्स थे तो उनका एक मैक्सिम बन गया था कि जिन्होंने ये स्लोगन दिया था। At that time, a group of Indian youth undertook activities to seek freedom from foreign rule। These extreme revolutionaries were more than happy to sacrifice their lives for the motherland। यानी कि ये जो इंडियन यूथ थे उस वक्त के, तो उन्होंने फॉरेन रूल से कुछ भी करके इंडिया को वो फ्री करवाना वो चाहते थे, और इसके लिए वो जो एक्सट्रीम रिवोल्यूशनरीज थे तो वो अपनी जान से ज़्यादा अपनी मदरलैंड जो है तो उनको वो फ्री करवाने की खुशी उनको ज़्यादा थी। यानी कि उनको अपनी जो जीवन है उनकी जो लाइफ है तो उनकी नहीं पड़ी थी, मगर वो अपने जो मदरलैंड है तो उनको फ्रीडम करवाने के लिए ही वो अब एक्टिविटीज शुरू कर दी थी। They could give up their lives or take lives in order to attain freedom। और उन्होंने ये भी स्टार्ट कर दिया था कि कुछ भी करके फ्रीडम लेने के लिए वो किसी की जान भी ले सकते थे और किसी वो खुद की जान भी दे सकते थे। Revolutionary activities spread in Maharashtra, Bengal, Punjab, Bihar, Orissa, Gujarat, Rajasthan, Madras provinces, उत्तर प्रदेश एंड सेंट्रल इंडिया। तो ये सब जो रिवोल्यूशनरी प्लेसेस है कि जहाँ पे रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी शुरू हो चुकी थी। Among these activities were some like मित्र मिलन सोसाइटी, अभिनव भारत समाज, अनुशीलन समिति, अंजुमन ए महिलान वतन, Indian Patriots Association, later Bharat Mata, etc. and thus gave impetus to revolutionary activities। यानी कि ये सब जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हुई थी तो उसमें जो इम्पटस दिया था, यानी कि एक तरह से जो एनकरेजमेंट दिया था, तो वो मित्र मिलन सोसाइटी, अभिनव भारत समाज, अनुशीलन समिति, अंजुमन ए मोहल्ला वतन, इंडियन पेट्रोइट्स एसोसिएशन जो बाद में भारत माता के नाम से जाना गया था, तो ये सब जो ऐसे सोसाइटीज थे, ऐसे ग्रुप्स थे कि जिन्होंने ये रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को एनकरेज किया था, यानी कि उनको एक तरह से इम्पेटस दिया था। In the first stage, newspapers and magazines like Sandhya, Yugantar, Navshakti, and Vande Mataram, Kesari, Maratha gave constant strength to the activities। यानी कि कुछ न्यूज़पेपर्स थे, मैगजीन्स भी थे,
कि जिन्होंने ये रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को एक्सपेंड करी थी, और वो मैगजीन जो थे, न्यूज़पेपर जो थे, तो उनके नेम आपको यहाँ पे दिए गए हैं। About 34 revolutionaries were prosecuted in the Alipur massacre. Several revolutionaries were arrested in Howrah massacre and Dhaka massacre. कि जो कुछ रिवोल्यूशनरीज थे कि जो हावड़ा मैसेकर और ढाका मैसेकर जो हुआ था, तो उसमें अरेस्ट किए गए थे। Attempt to kill Lord Hardinge by throwing a bomb in Delhi, dropping bomb on Viceroy Minto on November 13, 1909, outside Raipur Darwaja in Ahmedabad can all be given as example of this. यानी कि जो लॉर्ड हार्डिंज जो थे, तो उनको उनको मारने के लिए, उनका मर्डर करने के लिए जो बॉम्ब फेंका गया था दिल्ली में, उसके बाद जो वाइसरॉय मिंटो के ऊपर भी अहमदाबाद अहमदाबाद में जो रायपुर दरवाजा में जो वाइसरॉय मिंटो को भी मारने की कोशिश की गई थी। तो ये सब जो एग्जाम्पल्स थे कि जिसमें ऐसा हम कह सकते हैं कि जो एक्सट्रीम रिवोल्यूशनरी जो थे, तो वो अपने क्लाइमेक्स के ऊपर थे, यानी कि वो कुछ भी करके अब ये जो सब जो थे, तो उनको वो मारना चाहते थे। In the second stage, 1920 to 42, events like a Kakori loot case, Lahore massacre, and dropping of bomb on Central Parliament in Delhi took place. और उसके सेकंड स्टेज में 1920 और 42 में ऐसे इवेंट्स बने कि जो काकोरी लूट केस हुआ था, यानी कि जो काकोरी ट्रेन थी तो उसको लूटा गया था, फिर लाहौर में एक मैसेकर हुआ था, और सेंट्रल पार्लियामेंट में भी बॉम्ब ड्रॉप किया गया था। तो ये सब एग्जाम्पल्स थे कि अब जो इंडियन यूथ थे, तो वो अब वो मानने वाले नहीं थे, यानी कि कुछ भी करके वो फ्रीडम देना चाहते ही थे। You have already studied about the other revolutionaries engaged in all these activities. So friend, in the earlier paragraphs we have learned about the Congress was divided into two groups. So first one was a radical group, then other group was a moderate group. So many people or freedom fighters were inspired from the radical group, and as a result of that, fierce revolutionary movement had been started in our country. So we will see here fierce revolutionary movement in Gujarat. Sri Aurobindo Ghosh was the pioneer of armed revolution in Gujarat, but he remained behind the curtain. So friend, Sri Aurobindo Ghosh was the pioneer of revolutionary movement in our Gujarat state, which he had started armed revolution. But he was always remained behind the curtain. His brother Balindra Kumar Ghosh always remained in the forefront. In 1902, he arrived in Gujarat and moved towards the southern part. Here he made Sri Chotubai and Sri Ambubai Purani very able companions. यानी कि जो उनके ब्रदर थे बारिंदर कुमार घोष, तो वो एक फॉरफ्रंट वॉरियर थे, और वो गुजरात में भी आए थे, और वो सदर्न पार्ट में गए थे, और वहाँ पे वो छोटू भाई और अंबुबाई पुरानी को वो वहाँ पे मिले थे, और वो बाद में एक अच्छे कंपेनियन उनके बने थे। Sakarya Swami met him on the banks of Narmada. This Swami was associated with Queen of Jhansi at the time of the revolt of 1857. जो साकर्य स्वामी थे, तो वो नर्मदा की बहन के ऊपर उनको मिले थे, और ये स्वामी जो थे, तो वो स्वामी 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था, तो उसमें क्वीन ऑफ झांसी जो लक्ष्मीबाई थी, तो उनके साथ वो रह चुके थे, यानी कि वो उनके कंपेनियन बने थे। Balendra Kumar involved some of the middle class youth from Vadodara, Charotar region, which is nowadays known as Kheda, Ahmedabad, Mehsana, in the revolution. In relation to these activities, the buggy of Viceroy Minto was bombed outside Raipur Darwaja in Ahmedabad. यानी कि ये रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी हुई थी, तो उसके कारण अहमदाबाद में जो रायपुर दरवाजा है, तो वहाँ पे वाइसरॉय मिंटो की जो बगी थी, जो हॉर्स कार्ट थी, तो उसके ऊपर बॉम्ब अटैक किया गया था। नेक्स्ट पैराग्राफ। Sri Aurobindo Ghosh described the scheme for revolution in his book named Bhavani Mandir. It was also translated into Gujarati and published in the journal Dakshina. So friend, the revolution schemes of freedom, it was mentioned in Bhavani Mandir, which was written by Sri Aurobindo Ghosh, and it was also translated in Gujarati.
and the journal was published with Dakshina. Besides these booklets with titles like Desi Vanaspati Dawao, નાવાના સાબુ બનાવવાની રીત, કસરત, ગુલાબનો કિસ્સો, કાયદાનો સંગ્રહ, etc. were published in order to spread the thoughts of revolution so that Britishers won't understand. यानी कि ये सब जो बुक्स थी तो वो बुक्स के जो नेम्स थे यानी कि जो टाइटल्स थे वो डिफरेंट थे मगर उसमें जो कंटेंट था तो वो कंटेंट बॉम्ब कैसे बनाया जाता है यानी कि बॉम्ब बनाने की जो प्रोसेस है तो वो उसमें मेंशन की गई थी ताकि जो ब्रिटिशर्स थे तो वो समझ ना सके. These booklets contain methods of preparing bombs. Ganganath Vidyalaya was established near Chanod, Karnali, where secret revolutionary activities were carried out. यानी कि जो गंगनाथ विद्यालय है तो वो चानोद में एस्टेब्लिश किया गया था और वहाँ पे जो सीक्रेट रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी वहाँ पे होती थी. Many Gujarati youth joined these revolutionary activities against whom stern action was taken by the government. यानी कि ये जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी थी तो वहाँ पे कुछ बहुत से जो गुजराती यूथ थे गुजराती यंगस्टर थे तो वो उसमें शामिल हुए थे और इस तरह से वो गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करते थे. But the fight did not stop and finally government realized that suppression would not help to rule over India. यानी कि यहाँ पे ये जो फाइट है तो वो फाइट खत्म नहीं हुई थी मगर बाद में गवर्नमेंट को इतना तो रियलाइज हो चुका था कि अब इंडिया के जो लोग हैं तो उसके ऊपर अब सप्रेशन जो है तो वो नहीं हो सकता. In the previous paragraph we have learned about revolutionary movement in Gujarat state. Now here we will learn about revolutionary movement in foreign countries. The revolutionary movement began in foreign countries also for giving freedom to India from the British Empire. So friends, the revolutionary movement which was started in our country, it was spread in foreign countries also for the freedom of our country from the British Empire. The revolutionary activities that began in India spread to different countries like England, Canada, America, Germany, France, Myanmar. The old name was Burma, Malaya, Singapore, Afghanistan, and Russia. So, friends, the revolutionary activities was began in our country. It was spread in different part of the world, like in England, Canada, America, Germany, etc. The active revolutionaries who took part in revolutionary activities in foreign countries are Shyamji Krishna Verma, Madanlal Dhingra, Veer Savarkar, Lala Hardayal, Uttam Singh, Raja Mahendra Pratap, Madam Bhikaiji Kama, Sardar Singh Rana, Maulana Abdullah, Maulana Basir, Champak Raman Pillai, Dr. Mathur Singh Khudabaksh were associated with these activities. So friends, these were our freedom fighters who had started revolutionary activity in the foreign countries.